So once again, good evening, everyone, and welcome to our monthly webinar. And today's session is on Brain Gym for kids. And to present this webinar, we've invited Miss Jasmine. Jasmine ma'am is an occupational therapist from IPH College, which is a part of Delhi University. She's done her postgraduate diploma in health and hospital management. She has more than 10 years of experience in working as an occupational therapist at hospitals, clinics, and special schools. And she has certificate course in Brain Gym level 1, 2, and 3. And she's a certified HWT person. HWT is handwriting without handwriting without tears. So जिनके जो माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं हैंडराइटिंग को लेकर, जैस्मिन मैम इज द राइट पर्सन टू कॉन्टैक्ट. और अगर उनसे कुछ सजेशन चाहिए होगा, सो वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन ऑन हैंडराइटिंग एज वेल. And she is certified in Jolly Phonics also. And she has done one session with us for Avatar Families previously also. So a very warm welcome to you, Jasmine ma'am. It's so nice. जब भी आप आते हो हमें ऐसे लगता है आज हमारे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होने वाली है. और आज का टाइटल तो है भी ऐसा, ब्रेन जिम, की यस मैम, बॉडी के साथ साथ ब्रेन की भी एक्सरसाइज होगी. हाँ जी. So I am sure parents are very excited about today's topic and they are looking forward to getting lot of information from you, जो कि उनके बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. और ये जो बदमाश बच्चे बोलते हैं क्या करें, सो सर्टेन टिप्स आज आप लोगों को बड़े अच्छे टिप्स मिलेंगे कि फटाफट 5 मिनट की एक्सरसाइज से आप बच्चों को कैसे काम डाउन कर सकते हो. So over to you, Jasmine ma'am. I will move on the slides as and when you say. Fine, ma'am. Fine. Over to you. Hello everyone. My name is Jasmine. मेरी इंट्रोडक्शन मैम ने अच्छे से दे दी बहुत. So I am sure काफी लोगों ने ब्रेन जिम के बारे में सुना होगा. काफी फैशन में आया था ये पीछे कुछ साल पहले इंडिया में, though it started from US. But it has shown to be very effective. इसलिए इंडिया में भी अब बहुत लोग हैं जो ब्रेन जिम इंस्ट्रक्टर्स बन चुके हैं. तो let's start with it. Brain gym, it's a common term. The more technical term is educational kinesiology. Education means to learn and kinesiology is the movement of the body. So in short उसको हमने brain gym बोल दिया कि learning of brain through movement. So brain gym. इसमें हम ऐसी स्पेसिफिक मूवमेंट्स करते हैं जिससे हमारी बॉडी की मिड लाइन क्रॉस होती है. See, it is very important to cross the midline. So you can see this image. There is a girl standing और उसमें से प्लेन्स क्रिस क्रॉस हो रहे हैं. फाइन. जैसे उसकी बॉडी को हम डिवाइड कर रहे हैं मिड लाइन्स में, वैसे ऐसे ही हमारा जो ब्रेन भी डिवाइडेड होता है ऐसे ही प्लेन्स में. तो पहले हम बॉडी का समझेंगे, देन आपको उससे ब्रेन का समझ में आएगा. फाइन. You can see the yellow plane across the girl, that is dividing the girl into right and left parts. Okay, that is the yellow midline. And then see the yellow plane, that is dividing the body into upper and lower body. And similarly the pink plane, the green plane is dividing the body into front and back. ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है वो भी डिवाइडेड है, उसमें भी मिड लाइंस हैं. ठीक है, अपर एंड लोअर, राइट एंड लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक. मैम नेक्स्ट स्लाइड. सो लेट्स स्टार्ट विद राइट एंड लेफ्ट ब्रेन. राइट और लेफ्ट ब्रेन जब तक हमारा इंटीग्रेटेड नहीं होता हम बायलैटरल मूवमेंट्स नहीं कर सकते. बायलैटरल मूवमेंट्स मींस एकेडमिक्स में देखा जाए तो रीडिंग एंड राइटिंग, those are fine motor skills. And gross motor में देखा जाए तो sports activities like throwing a ball, catching a ball, running, jogging, swimming, इन सब में bilateral activities होती हैं. ये तभी अच्छी होती है हम जब हमारा right और left brain दोनों integrated होता है.
फाइन। और आप देखेंगे जिन बच्चों में राइट और लेफ्ट ब्रेन इंटीग्रेटेड नहीं होगा उनमें जनरली डिसलेक्सिया और लर्निंग डिसेबिलिटीज के फ्रंट ब्रेन होता है, दैट इज मोर फॉर thinking, abstract thoughts, coming to a conclusion for a problem. And back brain is for taking all the senses in. हमारा occipital lobe पीछे है जो जहां से जो हमारा विजन का पार्ट मैनेज करता है. देन वी हैव टेम्पोरल लोब्स हियर जस्ट बिहाइंड आवर ईयर, वो भी बैक ब्रेन का पार्ट है, जिसमें हम हमारे ऑडिटरी सेंसेशंस लेते हैं एंड मेमोरी का पार्ट होता है. तो फ्रंट और बैक ब्रेन का भी इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जिन बच्चों में इंटीग्रेशन नहीं होगा उनमें आप देखेंगे इनअटेंशन होगी, हाइपर एक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से उनके लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन इश्यूज भी होंगे. तो जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो उनका फोकस बढ़ जाएगा. देन देयर इज अपर एंड लोअर ब्रेन. द अपर ब्रेन इज cerebrum. It is cerebrum, the upper part of the brain. Okay, that is also for personality. हमारा नेचर कैसा है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हम वेल ग्राउंडेड हैं, हम शांत है या हम एजिटेटेड हैं, राइट. और जो लोअर ब्रेन है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है. तो इनका इंटीग्रेशन भी बहुत जरूरी है. व्हेन वी आर इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन और इन अ न्यू सिचुएशन, जनरली बच्चे क्या करते हैं, अगर उनके लिए एकदम न्यू सिचुएशन हो तो या तो वो डर जाते हैं या तो वो फाइट करते हैं या वो भाग जाते हैं. ठीक है, वो सोचते नहीं है उस मोमेंट में. दे डोंट थिंक कि अच्छा कुछ नया है, मैं ट्राई करूंगा तो मैं लर्न कर लूंगा. दे जनरली रन्स अवे. तो इसलिए अपर एंड लोअर ब्रेन का इंटीग्रेशन भी बहुत जरूरी है. उससे क्या होगा, दे विल गेट मोर ग्राउंडेड and they will be able to control their emotions. Fine. Next is ये हमें अब अपनी एक्टिविटीज के लिए सामान चाहिए होगा. I hope you have these things ready with you. मैंने ग्रुप में 10 मिनट्स पहले डाल दिया था सब पेरेंट्स के लिए. तो we'll just give them 1 minute कि अगर आपके पास ये सामान आप फटाफट से लेके आना चाहते हैं तो ये चीजें अपने पास हैंडी रख लीजिए. We'll give you 1 minute. I'll come in a second. So are we all ready? निकिता, आपके पास है सारा सामान? यस मैम. वेरी गुड. Okay. Yes, Jasmine ma'am. Shall we go on the first activity? Yes, ma'am. So let's start. The first activity is itself drinking water. So let's all have a sip of a water. Very good. Ma'am, we'll have a sip of tea if you don't mind. नहीं मैम, हमें पानी ही पीना है. टी, कॉफी, जूस का कोई इफेक्ट नहीं है. Okay. जो काम पानी का है वो पानी का ही है. Okay. Any other liquid will not do. अच्छा, मैम ने अच्छा एग्जांपल सामने दे दिया हमें. Okay. फाइन. क्योंकि वाटर में वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करते हैं. हमारे ब्रेन में कैसे सिग्नल्स पास होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ही है जो सिग्नल्स हैं. फॉर दैट दे नीड अ मीडियम. करेक्ट. हमारे ब्रेन को बहुत वाटर, बहुत फ्लूइड्स चाहिए सो दैट इट वर्क्स, उसका होमियोस्टैसिस बना रहे. ठीक है मैम. नेक्स्ट स्लाइड, वी कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड. ओके, so this one is a very interesting activity.
मैं जब आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, पहले मैं आपको बेसिक वर्जन बताऊंगी, फाइन, जो कि 4 to 6 years के बच्चे इजिली कर सकते हैं. देन आई विल टेल यू द सिंपलर वर्जन सो दैट 4 to 2 years के बच्चे कर सके, एंड देन एन एडवांस वर्जन जो 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो भी कर सके. फाइन. तो पहले आपको ये समझना है, ये एक्टिविटी खुद भी मेरे साथ करके देखनी है. फाइन. मैम आप ना स्टॉप वो कर दीजिए शेयरिंग, सो दैट मैं सबको देख सकूंगी सब सही कर रहे हैं कि नहीं. फाइन. चलो, everybody please put on your videos so that Jasmine ma'am can see if you know how to do crisscrolls. क्रॉस क्रॉस. Cross scroll, sorry. स्टैंड अप. आप ऐसे अपनी स्क्रीन रखिएगा कि मैं आप लोगों को देख सकूं. फाइन. देखिए क्रॉस में क्या करना है, आप अपनी में लेके जाना और वो राइट में लेके जाना. तो राइट हैंड को अपनी लेफ्ट नी पे टच करेंगे, देन लेफ्ट हैंड को राइट नी पे. राइट. और ये 10 टाइम्स करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. See, it's so simple. चांदनी, बेटा आप करके दिखाना, आप भी साथ में करके दिखाना. लेट्स डू इट वंस अगेन. 1 2 3 4, वेरी गुड. 5 6 7 8 9 and 10, वेरी गुड चांदनी. ठीक है, अब इसके और वर्जन्स देखते हैं. गुड जॉब. अब आप अपने हैंड को फुट से टच करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. गुड. ईशान और शिखा प्लीज आप भी ज्वाइन करो बच्चों. पेरेंट्स भी करें सो दैट उनको रियलाइज हो कि क्या मूवमेंट हो रही है. फाइन. नाउ विल डू इट फ्रॉम आवर एल्बोज, एल्बो टू नी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. करे सारे करें. ओके फाइन. ठीक है, ये था बेसिक क्रॉस क्रॉल. अब मैं बताऊंगी बच्चों के लिए कैसे इजी हो. बच्चों के लिए आप उनको बिठा सकते हैं नीचे. ठीक है, उनको बिठा के आप उससे ऐसे नहीं टच. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. ओके. और क्या कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए. आपने देखा है मेरे हैंड में रिबन्स है. ठीक है, बच्चों को विजुअल क्लूज चाहिए होते हैं, तो मेरा इसमें येलो रिबन है राइट हैंड में और राइट फुट में. ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट में रेड है और यहाँ राइट फुट भी रेड है. ठीक है, इससे क्या होगा, वो मैच कर पाएंगे इजिली और विद टाइम उनको अपने आप ही मूवमेंट लर्न हो जाएगी. और स्टिकर्स भी लगा सकते हैं ऐसे ही ऑपोजिट. फाइन. ये हो गया सिंपल वर्जन. अब बड़े बच्चों के लिए और मुश्किल वर्जन. अगर मैं फास्ट जा रही हूँ तो मुझे प्लीज बता देना. ओके. बच्चों के लिए हम इसको और कॉम्प्लेक्स करेंगे. फाइन. जैसे पीछे के फुट को पीछे से टच करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके. और इसको हम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं बड़े बच्चों के लिए. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. ओके, अब हम इसको करेंगे म्यूजिक के साथ, सो दैट हम इसको एंजॉय कर सके. आई प्ले द म्यूजिक. जो मैं वर्ड यूज करूंगी, ट्राई टू कीप अप विद दैट. चांद तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे. हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई. हेलो हेलो तू मुझे घूमने लगाई, येलो येलो कभी बहुत करो मेरे भाई. मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख आज भी दिल पर उड़िए तीर जाहिद जल जावे. कर दे बिनती ये सराबी, चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना इमला बन जा फिर जो इतनी हो बेताबी. गुड जॉब, सबने कैचअप किया. वेरी गुड. वेरी नाइस मैम, गुड फन. सब में एक बार एनर्जी आ गई. बिल्कुल. म्यूजिक इज मैजिकल मैम. ऑफ कोर्स. अच्छा, आपने देखा बीच में मैंने स्लो मोशन में किया? नहीं, हम तो म्यूजिक के साथ फास्ट फास्ट कर रहे हैं. जब बड़े बच्चों के लिए एक तो जो वर्जन है उसको कॉम्प्लेक्स, और उनको बोले कि स्लो भी, कि स्लो करना इज डिफिकल्ट, क्योंकि आप रिदम में जब फास्ट करते रहते हैं, तो उनको बोले स्लो भी करें. एंड ऑलवेज मेक श्योर म्यूजिक होगा, सब बच्चे एंजॉय करेंगे, आप लोग भी एंजॉय करेंगे. फाइन. Right. नाउ लेट्स टेक अ सिप ऑफ वाटर. फाइन. Here comes lazy 8. ओके. सो इसके लिए ना आपको मैं ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी. Lazy 8 is basically आप समझ लीजिए द स्लीपिंग 8 पोजिशन. इसमें एक मिड लाइन होता है सेंटर में, देन उसके अराउंड हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और आप साथ वाली एक इमेज देख लीजिए जिसमें ट्रैक बना हुआ है और कार्ड्स बनी हुई है. फाइन. मैम यू कैन स्टॉप शेयरिंग नाउ. ओके. सो नाउ आई विल शो यू इसको कैसे करना है. ठीक है, हम पहले ही सेंटर में एक मिड पॉइंट बनाएंगे. फाइन. अगर लगता है बच्चे के लिए मिड पॉइंट मुश्किल है तो देन यू कैन डिवाइड द प्लेस इनटू हाफ. एंड ऑलवेज ट्राई विद अ बिग शीट और अ चार्ट पेपर, क्योंकि पहले वो इस मूवमेंट को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ओनली देन वो फिर छोटे प्लेन में जा पाएंगे, यानी छोटे पेजेस पे या कॉपीज में. सो हम सेंटर में रखेंगे अपने इसको, पेन को, स्केच पेन को, एंड देन फर्स्ट विल गो अप, क्रॉस, राउंड, एंड देन अगेन एट द सेंटर. वापस इधर ही आना है हमने. ठीक है, देन अगेन अप, क्रॉस, अराउंड, एंड देन अगेन सेंटर. फाइन. ये है मूवमेंट. मैम इस मूवमेंट से क्या फायदा होता है और ये इसका क्या फंक्शन है? सी, इसमें भी हमारा जो ब्रेन है वो राइट और लेफ्ट इंटीग्रेशन हो रहा है. दिस इज द माय राइट left vision field and this is my left vision field.
तो आप देखेंगे जिन बच्चों को रीडिंग राइटिंग में इश्यूज होते हैं, हाँ, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने पूरे विजन फील्ड को यूज कर पाना। तो इसमें ये बहुत इफेक्टिव होता है। इट विल मेक यू अवेयर कि ओके, हमें अपनी बॉडी के राइट में भी जाना है, लेफ्ट में भी जाना है, तभी हमने प्लेन्स को डिवाइड किया। ओके, राइट, तो हम इसको बार बार ड्रॉ करेंगे रिपीटेडली। फाइन, यस, एटलीस्ट 10 टाइम्स इसको हम करेंगे, ठीक है। सी, आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मुझे इसको ऐसे रखना पड़ रहा है, अदरवाइज इसको टेबल में रख के या किसी वर्टिकल प्लेन के साथ इसको रख के करेंगे, ठीक है। एंड मेक श्योर कि जितना आप बच्चे का हाथ एक्सटेंड हो सके, फाइन, और जितना ज्यादा ऐसे मूव हो सके उसके शोल्डर लेंथ में, उतना आपने मूव करवाना है, फाइन। बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे जब वो यूज टू हो जाए तो इस हम प्लेन को क्लोज लाएंगे और मूवमेंट को और छोटे रिस्ट पे लेकर आएंगे। फाइन, we'll start with the shoulder, then we'll eventually move to elbow, then wrist. मैम आपके लिए तो क्वेश्चन है। हाँ जी मैम। यस अमृता। मैम, जब छोटे बच्चों को साइकिलिंग सिखाई जाती है तो उनको भी सर्कल और 8 बनवाते हैं, पहले बिगर 8 देन स्मॉलर 8, तो क्या ये दोनों एक्टिविटी सेम फंक्शन करती हैं? उसका भी यही इम्पैक्ट होगा क्या? जो आप 8 बना रहे हैं ना, वो पार्ट ऑफ जी। ब्रेन जिम, ये लेजी 8 ही है। ओके, दैट इज लेजी 8 only that you are doing. फाइन। मैम मुझे ये याद है कि ड्राइविंग टेस्ट में भी आजकल जैसे अगर हम लाइसेंस के लिए जाते हैं तो वहां पर ड्राइविंग टेस्ट में भी वो 8 बनवाते हैं, रिवर्स S एंड 8। हाँ, तो मैम इसी के लिए देखने के लिए आपका राइट और लेफ्ट जो विजन फील्ड है वो इंटीग्रेटेड है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि व्हेन वी आर ड्राइविंग हमें राइट लेफ्ट दोनों साइड देखना होता है, इधर देखना होता है फिर दूसरी तरफ भी देखना होता है। इंडिया में तो स्पेशली अगर वन वे में जा रहे हैं फिर भी आपको ऑपोजिट देखना पड़ेगा, यू नेवर नो वहां से क्या आ जाए। ओके, ठीक है, तो अब हम इसको बच्चों के लिए और इंटरेस्टिंग करेंगे। ये तो मैंने राइट से किया था आपको बताने के लिए, इसको हम लेफ्ट से भी करेंगे। यूज डिफरेंट पेन सो दैट उनको पता चले कि हाँ ये क्या एक्टिविटी हो रही है। अगेन मिड पॉइंट पे ही रखेंगे इसको, देन वी गो लाइक दिस एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट योर ओन eyes are on the tip of the pen. You are आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको फॉलो करेंगे तभी आप दोनों अपनी राइट और लेफ्ट विजन फील्ड को क्रॉसली देख पाएंगे। जहां का हाथ जा रहा है आपको उसको देखना है, ठीक है। तो आप इसके निप पे पॉइंट पे अपनी विजन को रखिए, यानी कि पेन की टिप के साथ आईज का ट्रैकिंग करेंगे। यस, वी हैव टू ट्रैक आवर आईज अलोंग विद द निप ऑफ द पेन, ठीक है। आप इसको करेंगे, अपनी विजन से फॉलो करिए, देन यू विल रियलाइज कि हाँ आईज में थोड़ा यू कैन फील दैट मूवमेंट एंड इफेक्ट जब आप इसको करेंगे, ठीक है। एंड देन आपने राइट लेफ्ट दोनों से कर लिया। अब आप आई विल सी अगर मैं इसको कर पाई कि नहीं। एक सेकंड, बोर्ड दिख रहा है? यस, थोड़ा पास, हाँ। एक सेकंड, मैंने इसको थोड़ा ऊपर से अब मैंने दोनों को ऐसे रखना है हाथ में, फाइन। तो और अब मैं ऐसे करूंगी, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में खड़ा रहना, इसकी लाइन है जो सेंटर की, आप वहीं प्लेस होने चाहिए, ठीक है। मैं साइड में हूं ताकि आपको दिख सके मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ, ठीक है। कीप एट द सेंटर, पहले यहाँ जाएंगे, आप बच्चों के लिए और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इसको। आप यू कैन मेक इट लाइक अ फिश, ओके, ठीक है, सो दैट दे डूइंग दीस एक्टिविटीज। मैम ये 2 पेन वाली एक्टिविटीज बच्चों को डिसलेक्सिया, हाँ जी मैम। मैम जो आपने ये 2 पेन एक साथ लिए थे अभी, हाँ जी 2 पेन मैम, ये तो छोटा, मेरा बेटा 4 ईयर का है, तो वो होल्ड ऐसे कर पाएंगे हम वो हैंड से, ऐसे बड़े बच्चों के लिए ये वाली एक्टिविटी?
नहीं करना ना, तो आपका जो ड्राइंग शीट है वैसे इसको ना लेके आप चार्ट पेपर लेना और बड़ा लेना, ठीक है। दीवार की डोर पे लगाइएगा, पहले आपको उसके हाथ खुद पकड़ने पड़ेंगे मूवमेंट के लिए, ठीक है। आप उससे इसके हाथ ऐसे पकड़ के मूव करवाइएगा, देन इवेंचुअली आप सपोर्ट छोड़िएगा और बच्चा अपने आप कर लेगा, ठीक है। और भी मैम ने स्लाइड दिखाई थी, उसमें एक रोड का ट्रैक बना हुआ था। हाँ जी मैम। यू रिमेम्बर? यस मैम, यस मैम। छोटे बच्चों के लिए है, जो बच्चे अभी पेन नहीं यूज करते, ड्रॉ नहीं कर सकते, उनको आप ऐसा ट्रैक दे दीजिए, हाँ, और उसके ऊपर कार को रखिए और उनको बोलिए ड्रॉ, उसके ऊपर मूव करें। फाइन। बच्चे जब 8 शेप में करेंगे जो दिखाएगा, ठीक है। या अपनी फिंगर को ट्रेस करें 8 पे, हाँ, एक हाथ आप उनका पकड़ लीजिए, उनको पहले आप उनको प्रैक्टिस कराएंगे तब उनको समझ आएगा। पर छोटे में 2 ईयर अब बच्चे ये कर सकते हैं, दे विल नीड सपोर्ट बट दे वुड बी एबल टू डू इट, ठीक है। और बड़े बच्चों के लिए आप इसको और मुश्किल वर्जन कर सकते हैं, आप चॉक एंड ले सकते हैं, आप पेंट एंड पेपर ले सकते हैं, फाइन। सैंड में भी 8 बनवा सकते हैं, यू कैन, दे कैन यूज देयर क्रिएटिविटी। ये लेजी 8 समझ में आ गया? दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। यूएस में तो मैक्सिमम स्कूल्स में क्या करते हैं, रीडिंग राइटिंग सेशन से पहले वो बच्चों को लेजी 8 बनवाते हैं, इससे ताकि बच्चा सेंट्रल हो और वो उसका फोकस बढ़े, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज डबल डूडल। Now this activity also integrates right and left brain. इसमें भी आपको एक मिडलाइन बनाना है, एंड आपको दोनों हाथों से ड्रॉ करना है, जस्ट लाइक एन मिरर इमेज ऑफ द सेम पैटर्न जो आप बना रहे हैं एक साइड पे। हाँ, ये क्रिसमस आ रहा है, so क्रिसमस ट्री, ओके, ये उसके बॉल गए, दिस इज द स्टार। डबल डूडल बेसिकली आपको दोनों साइड पे सेम ड्राइंग करनी है, ठीक है। इसमें भी आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन इंटीग्रेट होता है। मतलब यू कैन ड्रॉ एन नंबर ऑफ, छोटे बच्चों के लिए सबसे इजी है शेप्स बनाना, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उनको समझ में आएगा कि ओके दीज आर, ये दो एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकते हैं, ठीक है। उनको ओरिएंटेशन समझ में आएगी, प्लेसमेंट समझ में आएगी, जो उनको लेटर ऑन रीडिंग और राइटिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। आप बड़ा कुछ बना सकते हैं इसमें, यू कैन लेट स्पाइरल्स बना सकते हैं, यू कैन मेक अ बोट, काफी कुछ कर सकते हैं। मतलब यू विल बी सरप्राइज कि बच्चे क्या क्या बनाते हैं, बहुत क्रिएटिविटी कर सकते हैं। यू कैन गो ऑन नेट एंड सी डबल डूडल आर्टिस्ट एज वेल, ये बहुत है अपने आप में एक, व्हिच इज वेरी मैम कई आर्टिस्ट हमने वो भी देखे हैं ना, जो दोनों हाथों से सैंड से भी बना लेते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट how well you control both the hands together. Yes, basically ब्रेन आपका इंटीग्रेटेड है, ठीक है, ये यही दर्शाता है, डबल डूडल ही कर रहे हैं। एंड देन यू विल सी जो आर्टिस्ट ये कर पाते हैं वो रीडिंग राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। फाइन। बच्चों के लिए तो आप कितना बड़ा बड़ा सा चॉक बोर्ड ले सकते हैं, दे विल एंजॉय डूइंग दिस। ओके, नेक्स्ट मैम, बेली ब्रीदिंग। Okay. So breathing is, of course, the basic breathing. काफी बार बच्चे इस चीज को करना भूल जाते हैं जब वो स्पेसिफिकली टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। हमें तो पता है, ठीक है, हम लोग योगा प्राणायाम हम लोग जानते हैं, हमें पता है वी कैन कंट्रोल आवर ब्रीदिंग, बट फॉर अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड ब्रीदिंग एग्जैक्टली, इनहेल एक्सहेल एंड ऑल,
आप बल्कि कहेंगे ना करो इनहेल एक्सहेल, वो टेंशन में आ जाएंगे, वो और अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लेंगे। सो फॉर दैट वी विल टीच देम बेली ब्रीथिंग। पहले हम बैठ के करेंगे। यू विल कीप योर हैंड्स ऑन योर नेवल लाइक दिस, कंफर्टेबल और रिलैक्स पोजीशन में रहना है बिल्कुल। पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ना नेक में, ना शोल्डर्स में, ना हिप्स में, ना नीज में, राइट। आप पहले जो आपकी ऑलरेडी इनहेल्ड एयर होगी उसको पहले आप पफ आउट करेंगे थ्रू माउथ। नाउ योर लंग्स आर क्लियर, कोई एक्स्ट्रा एयर नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब हम ब्रीथ करेंगे। 3 काउंट में ब्रीथ करेंगे। एंड 3 काउंट एक्सहेल करेंगे। फाइन। इसको आप इवेंचुअली 3 में है, फिर हम 5 में जाएंगे, फिर हम 7 में जाएंगे। बच्चों को आपको ऐसे सिखाना है, इससे और अच्छा वो कंट्रोल करना सीख ले, ठीक है। तो हो गया वर्जन, ठीक है। छोटे बच्चे हैं वो ये कैसे करेंगे, उनके समझना ज्यादा जरूरी है। फॉर दैट यू हैव टू मेक देम लाइट डाउन। अब मैं पीछे काउच में जाके करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे बताना वे करने के बाद। इसमें आप ऐसे लेटेंगे, थोड़ा हेड एलिवेटेड रखना बच्चे का, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे डायफ्राम, ये जो आपकी मसल है ब्रीदिंग वाली, वो अच्छे से फील होगा। तो हाथ रखेंगे और ब्रीथ करेंगे। फिर लेटने से क्या होगा, जो है बच्चे का हाथ अच्छे से मूव होगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और बच्चे को क्या है ना, वो फोकस करे अपने हैंड्स पे कि अप एंड डाउन जा रहा है, इट मींस वो गुड ब्रीदिंग कर रहे हैं। अगर और उनको क्यू चाहिए, देन व्हाट यू कैन डू, आप कोई स्टफ टॉय या कोई भी उनका कार या कुछ भी उसके पेट पे रख सकते हैं, एंड देन टेल देम कि इसको अप एंड डाउन मूव करो अपने टमी से। जो टॉय की मूवमेंट होगी वो बच्चे को एक विजुअल फीडबैक देगी कि हाँ दे आर डूइंग बेली ब्रीथिंग प्रॉपर्ली, ओके। देन वन मोर वे वी कैन डू दिस, ये बड़े बच्चे करें। मैं थोड़ा स्क्वाट करके बैठेंगे हम फ्लोर पे, और हम अपने हैंड्स अपने आगे रखेंगे ऐसे। फाइन। एंड देन अगेन विल ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जब आप ये मूवमेंट करेंगे आपको रियलाइज होगा कि आपकी डायफ्राम पूरी फील होगी, इट मींस यू आर डूइंग द परफेक्ट ब्रीदिंग। ये आप मूवमेंट करेंगे तो आपको रियलाइज होगा, इज एनीवन डूइंग इट, कोई कर रहा है, मुझे कोई लग नहीं रहा करता हुआ। मैम सब आपको ध्यान से देख रहे हैं। ओके ओके, बट डू दिस एक्टिविटी फॉर श्योर, तभी आपको रियलाइज होगा, ठीक है, कि एक्टिविटी कैसे करनी है। गॉट इट? यस, आई थिंक सब पेरेंट्स को ये इसका स्पीच से बहुत गहरा रिलेशनशिप है डीप ब्रीदिंग का। जो बच्चे डीप ब्रीदिंग करते हैं उनका जो सेंटेंस बोलने का जो लेंथ है वो हमेशा बढ़ जाता है। कई बच्चे बीच बीच में ब्रेक लेते हैं क्योंकि उनको डीप ब्रीदिंग की आदत नहीं होती, तो कोई भी लंबा सेंटेंस आता है तो उनको प्रॉब्लम होती है लंबा सेंटेंस बोलने में। सो अगर आप डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करा रहे हो बच्चों को, और आई थिंक वो बहुत अच्छा आइडिया था जैस्मिन मैम जिसमें आपने टॉय को टमी पे रखा ताकि उनको वो मूवमेंट फील हो कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, हमें इसको वो एक उनको फीडबैक मिल रहा है कि हम सही कर रहे हैं। हाँ, तो डीप ब्रीदिंग से बिल्कुल। लंग कैपेसिटी बढ़ती है, नंबर 1। और हमेशा याद रखें जो स्पीच है वो तभी लंबी प्रोड्यूस होती है जब हम लॉन्ग ब्रेथ को एक्सहेल करते हैं, यानी कि जब हम ब्रीद आउट करते हैं तभी हम बोल पाते हैं।
जिस टाइम हम सांस ले रहे हैं उस टाइम हम बोल नहीं पाते, लेकिन क्योंकि हमें बोलने की इतनी आदत है और ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसलिए हम इस चीज को नोटिस नहीं करते। बट ब्रीदिंग आउट हेल्प्स द गुड एंड लॉन्ग स्पीच अटरेंसेस इन अ चाइल्ड। तो अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे में पॉजेज लेना, ब्रेक करना ये है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल हेल्प योर चाइल्ड। और इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, ऐसा नहीं है कि छोटे हाँ, बच्चे ही करेंगे या बड़े बच्चे ही करेंगे। हर एज हर स्टेज में, इवन कि आप और मैं भी डीप ब्रीदिंग करें तो ये होल बॉडी रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बच्चे क्या होते हैं जनरली कुछ डिले, आप नोट करेंगे बच्चे भी ज्यादा इमोशनल है, ठीक है, उसकी वजह से क्या ब्रीदिंग शोल्डर से ब्रीथ करना वो होती है। और आप देखेंगे बच्चे जल्दी ऐसे बैठेंगे, ठीक है, थोड़ा आगे श्रग वो रखे होंगे उनके शोल्डर्स, फाइन, दे वोंट बी रिलैक्स। जब तक आपके शोल्डर रिलैक्स नहीं होंगे तब तक आपकी टमी में जो मसल है डायफ्राम अच्छे से यूज नहीं हो पाए, ठीक है। तो डायफ्राम इज अ मसल, आप उसकी जितनी एक्सरसाइज करेंगे वो तभी स्ट्रांग होगा और तभी आपकी लंग कैपेसिटी और ब्रीदिंग बेटर होगी। तो हम जनरली हम बॉडी को तो स्ट्रांग कर लेते हैं, हम भूल जाते हैं कि सबसे बेसिक चीज डायफ्राम, द वेरी इंपॉर्टेंट मसल, उसको भी तो हमें स्ट्रेंथन करना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। And next is arm activation. This activity is very good for those children जो जिनमें ना writing stamina कम, fine, और जिनको लगता है their writing is very sloppy या their drawing is not good enough, so for those people arm activation is a very good activity. In fact even for parents जो बहुत देर तक लैपटॉप पे काम करते हैं या फाइल वर्क करते हैं, उनको भी ये करने चाहिए। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप पहले पेरेंट्स करके देखेंगे एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है, ठीक है, देन दे कैन डू इट ऑन देयर चाइल्ड। तो इसमें आप अपने राइट हैंड को किया, आप किया, फाइन। अब हमारे जो मूवमेंट होती है शोल्डर में, फ्रंट, बैक, आउट एंड इन, तो इन्हीं मूवमेंट्स का हमको इसको रेजिस्टेंस देना है, ठीक है। मैं दूसरे हाथ से रेजिस्टेंस दूंगी, रेजिस्टेंस मतलब मैं रोकूंगी, हाँ, मैं अपने हाथ को इधर लेके जाना चाहती हूँ पर इस हाथ से मैं इसको रोकूंगी, मेरे हाथ में स्ट्रेन आएगा, फाइन, ठीक है। यू कैन फील, आपको इसको रोकना है मूवमेंट को, ठीक है, रेजिस्टेंस दे रहे हैं हम हाथ से, ठीक है। इनसाइड किया, अब इसको आउट करेंगे, फाइन। अब फ्रंट में, देन बैक, ठीक है। सिमिलरली दूसरे आर्म में भी करेंगे, इन, आउट, फ्रंट, बैक। आपको महसूस हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है आपका शोल्डर, आपकी ये मसल्स रिलैक्स हो रही है, फाइन। अब जब आप लिखेंगे आप बहुत अच्छा और क्लियर लिख पाएंगे, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं, बहुत स्ट्रेस और स्ट्रेन में होते हैं, बहुत लंबा लंबा देर तक काम करते रहते हैं, तो हमारी यहाँ की मसल्स भी बहुत टेंस हो जाती है। Then you feel कि हाँ, now I have more stamina in my work. समझ लिया। आप अपने बच्चे पे कहेंगे, चाइल्ड सिट ऑन द चेयर, मैम आप वो स्लाइड दिखाएंगे, उसी स्लाइड पे था डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, जो नीचे वाली इमेज है उसको आप देखें, इमेजिन दैट द चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है, वो दोनों हाथ एक साथ ऊपर करेंगे, ठीक है। पहले आप फ्रंट से रेजिस्टेंस देंगे, ठीक है, बैक से, इन से एंड आउट से, ठीक है। ऐसे बच्चा भी ऐसे ही आइसोमेट्रिक कर पाएगा जो आप अपने हाथ में फील कर पाए हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी, आप जरूर करना अपने बच्चों को, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड में ब्रेन बटन्स। Let's take a sip of water first. Okay. So why do we call it brain buttons? हमारा मानना है कि यहाँ पे बटन्स हैं, हाँ।
ये हमारी कॉलर बोन, पहले मैं आपको जगह बताती हूँ, पोजीशन जहां आपने आपको होल्ड करना है, ठीक है। दिस इज आवर कॉलर बोन। मैम आप मेरे को वो शेयर करना स्टॉप करेंगे सो दैट मैं देख सकूं पेरेंट्स ये कैसे कर रहे हैं। ये कॉलर बोन को आप रेस करें, रेस करते करते यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये हमारी सेंटर में आ जाती है स्टर्नम, फाइन। जहां ये एंड हो रहा है उसके नीचे जाइए थोड़ा सा, ठीक है। थोड़े आप शोल्डर श्रग करेंगे, यू विल फील कि 2 हॉलोज हैं दोनों साइड में, इंडेंट है अंदर की तरफ, यू कैन फील दैट। यस, आपको मिल गया? अगर नहीं मिल रहा तो शोल्डर्स को और श्रग कीजिए, ठीक है। तो एक हाथ हम यहाँ रखेंगे, दूसरा हाथ अपने नेवल पे रखेंगे, फाइन। और हमें इसको रब करना है, स्ट्रांगली रब करना है, ठीक है। और साथ में ब्रीदिंग करते रहनी है, ब्रीदिंग भी हमने बोलनी, ठीक है। एंड along with that we have to track our room from right to left. Okay, now again we'll change our hand. अब ये वाला हाथ रखेंगे यहाँ, रूम को ट्रैक करेंगे। सिर्फ आई ट्रैक होनी चाहिए, नेक या हेड मूव नहीं होना चाहिए। Okay, so why do we call it brain button? Because यहाँ से हमारी कैरोटिड ब्रेन की तरफ जाती है। We will start from heart and then ends in brain. It is a very important art, but जरूर होता है इसका, ठीक है। ब्रेन में कहते हैं, तभी कहते हैं जब ये वाली जो हमारा ब्लड जाना बंद हो जाता है, फाइन। तो यहाँ से उसका लोकेशन होता है, यहाँ पे बहुत सुपरफिशियल होती है, यहाँ पर आप उसको स्टिमुलेट करेंगे तो ब्रेन में और ब्लड जाएगा, फाइन। तभी हम इसको ब्रेन बटन्स बोलते हैं कि ये बटन है जिनको हम दबाएंगे हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, फाइन। साथ में ब्रीथ जरूर करना है और आई ट्रैकिंग भी करनी है, ठीक है। मैम नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे आप? यस। हाँ, एनर्जी यॉन, ओके फाइन, ठीक है। अब वापस आ जाइए मैम से पेरेंट्स पे। ओके, सो डज एनीबडी नो व्हाई वी यॉन? किसी को आइडिया है? एनी गेस? जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम हो जाता है। हाँ, परफेक्ट मैम, परफेक्ट। इट इज अ रिफ्लेक्सिव रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स। हम जब हमें लगता, हम जनरली तब करते हैं जब हमें थोड़ी नींद आने लगती है, यानी ब्रेन शट डाउन होने लगता है, स्लो होने लगता है, तो इनवॉलेंटरी हमारा ये रिफ्लेक्स आता है यॉर्निंग, ठीक है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। एंड यॉर्निंग इज एक्चुअली अ वेरी गुड हैबिट इन ब्रेन जिम, ठीक है। सोशल सेटिंग में आपको बोलेंगे कि नहीं यॉर्न मत करो, इट डजंट लुक गुड, बट नहीं, आपको यॉर्न आए, डोंट कंट्रोल इट। क्योंकि क्या होता है जब आप यॉर्न को कंट्रोल करते हैं ना, तो यहाँ आपकी टेंशन डेवलप होती है। यू कैन ट्राई, आप यॉर्न करने की कोशिश करो और उसको दबाएंगे तो यहाँ पे बहुत टेंस फील होगा आपको। यू कैन सी योर होल जॉ इज गेटिंग वेरी टाइट। आपने उसको रिप्रेस कर दिया तो आपने एक्चुअली ब्रेन को भी सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो अब हम यॉर्निंग करेंगे। आप अपना माउथ ओपन करिए, यहाँ पे आपको जॉइंट फील होगा, बार बार अप डाउन करेंगे आपको एक जॉइंट पता चलेगा, पता चल गया? आप उसको रब करिए, उससे थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आपको महसूस हो कि आपके जो मोलर्स है ना, आपके दांतों के मोलर्स आपको महसूस होने चाहिए, फाइन। इसको रब करिए और साथ में आपको साउंड भी निकालना है, जितना लंबा करेंगे उतना आपका लंग कैपेसिटी भी पता चलेगा, फाइन। अब जो ये हम इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारी टेंशन रिलीज होगी, हमारा स्पीच आउटपुट बहुत अच्छा होगा, फाइन।
ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनके ओरोमोटर इश्यूज हैं या टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट नहीं हो रखे हैं, ठीक है, जो स्टटरिंग करते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, क्लियर स्पीच नहीं है, ये वाली एक्टिविटी उनके लिए बहुत अच्छी है। तो आप जब भी अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हो या आपको लगे कि हाँ अभी बच्चे ने कुछ स्टोरी बोलनी है या ऐसे बोलना है, तो फर्स्ट उसको आप ये एक्टिविटी कराइए, जो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और आपकी स्पीच बहुत क्लियर हो जाएगी। आई होप यू कैन योरसेल्फ फील कि ये जगह बहुत रिलैक्स लग रही होगी, माउथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत इजी लग रही होगी। Yes, Amrita, you have a question. मैम while doing this breathe को होल्ड करना है या एक्सेल करना है? नहीं, ब्रीदिंग तो आपको रोकनी ही नहीं है, यू हैव टू ब्रीथ करते रहना। हाँ, जब Breathe आप continuously. हर Okay. एक्टिविटी में आपको ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, Normal ब्रीदिंग रखनी कहीं रोकी। And we have to Fine. rub this area in circular motion हाँ, or बस आप ऐसे anything. एनीथिंग एंड यू जस्ट हैव टू Anything. बेसिकली आप उस जो यहाँ मसल्स है ना Right, उसकी आप ma'am. मसाज कर रहे हैं हाँ. और थोड़ा स्ट्रांगली करिए, थोड़ा दबा के, Firmly. तभी Right, ma'am. इफेक्ट आएगा। Just don't place the hands, rub Right, them ma'am. strongly. Fine. ठीक है, so this was energy on. Energy. Fine. चलो let's move to next one. हम दिखाना next. Thinking cap. It's like इसका नाम इसलिए है कि आप कोई इमेजिनरी कैप पहन रहे हैं, ऐसे पहनते हैं ना आप, हाथ ऐसे लेकर आते हैं, फाइन, बट इसका जो मूवमेंट है वो एक्चुअली ईयर्स की है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने जैसे पिंच करना है, होल्ड एंड पिंच, ठीक है, अपने ईयर्स को पहले सबसे टॉप पार्ट से पकड़ेंगे ईयर्स को। मैम आप स्टॉप करेंगे स्क्रीन स्टॉप, हाँ, टॉप से पकड़ेंगे, एकदम पास हो जाती है, फाइन, दोनों में, फिर इसको अपवर्ड एंड आउटवर्ड पुल करेंगे अक्रॉस द एजेस, फाइन, कम से कम 3-4 टाइम्स आप ये पूरा करेंगे। मैं एक मूवी देख रही थी जिसमें वो कह रहे थे तेरे को ये सम करना नहीं आया, इधर आ, तो वो टीचर जो है वो कान पकड़ता था दोनों तरफ, वो यही उसका थिंकिंग कैप चालू कर रहा था। इसीलिए तब कान तक पकड़ा जाता है बच्चों का। हाँ, तब तक रिसर्च नहीं हुई थी ना, अब हो गई है, पता चल गया कान खींचना एक्चुअली इफेक्टिव है। हाँ, तो आप कान खींचने में घबराओ मत, खींचो। हाँ, ठीक है, यू कैन फील द रश ऑफ ब्लड इन योर ईयर्स। यस, आफ्टर दिस एक्टिविटी अब आप ध्यान देंगे कि आपको और क्लियर सुनाई दे रहा है, आप कॉन्सेंट्रेट करिए, आपको बैकग्राउंड नॉइजेस भी सुनाई दे रही होगी, फाइन, आपको महसूस हो रहा होगा कि हाँ द वर्ल्ड इज बिग, देयर आर सो मेनी साउंड्स यू कैन हियर नाउ, ठीक है। सो इसमें भी जब आप बच्चों का सेशन ले रहे हो या आप कुछ डिक्टेट कर रहे हो, जब आपको पता है आपके बच्चों को अभी इफेक्टिव हियरिंग करनी है, तो ये एक्टिविटी उनको पहले करवाइए, फाइन। इसमें भी आपको साथ साथ ब्रीदिंग करते रहना है, ठीक है, ब्रीदिंग किसी भी एक्टिविटी में आपने रोकनी नहीं है, ठीक है। पहले अच्छे से कान मरोड़ दो, फिर बोलो चल पढ़ने बैठ। हाँ, पहले आप करेंगे बच्चों का, ताकि उनको रियलाइज हो कि क्या एग्जैक्टली मूवमेंट हो रही है, ठीक है, देन दे कैन लर्न इट देमसेल्फ। छोटे बच्चों का तो आप खुद ही कर सकते हैं एज पेरेंट्स, ठीक है, बस प्यार से करना, खींचना नहीं। मैम इसीलिए तो वो मैं डर ना बात जाए, कर रही थी। ठीक है। नेक्स्ट वन, यस, दिस इज हुकअप्स। दिस वन हैज बीन कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी। ये आपके पूरे ही ब्रेन को इंटीग्रेट कर देती है, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, अप, डाउन। तो मैम इस से समझेगा, ध्यान देने वाली एक्टिविटी है, ठीक है मैम, यू कैन स्टॉप शेयरिंग नाउ, ठीक है, ये आप सबको करनी पड़ेगी वरना आपको ये समझ नहीं आएगी अगर की नहीं तो, ठीक है। सो एवरीवन गेट अप। हाँ, अभी बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एक्सरसाइज, आप सब लोग वीडियोस ऑन, कैमरा ऑन कर लो, सब एक बार फाइनल एक अच्छी सी एक्सरसाइज कर लो। सेकंड, मेरे को और दूर जाना पड़ेगा शायद।
ठीक है, देखिए इसमें पहले हम अपनी करेंगे लेग क्रॉस। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वी आर डूइंग द फर्स्ट पार्ट, क्रॉस योर लेग। करिए सारे एक साथ करिए, तभी ये हो पाएगा। आर्म सामने, क्रॉस देम ओवर, पाम्स को एक साथ फेस करिए। हाँ, एंड देन जॉइन योर फिंगर, को लेकर आएंगे इनवर्ड। ठीक है, इसी पोजीशन में मैं रहना, मैं चेक कर लूं सबने ठीक किया कि नहीं। तो मैम आपने ठीक नहीं किया, JR के इन्होंने बिल्कुल सही किया, निकिता जी ने भी ठीक नहीं किया, अंजलि जी ने, मुझे समझ नहीं आ रहा अंजलि जी आपका आसमा जी ने ठीक किया, शिखा ने नहीं ठीक किया चांदनी जी ने ठीक किया फाइन, फिर से करते हैं एक बार, ठीक है, आपको ताकि समझ में आए। अगेन फर्स्ट क्रॉस योर लेग्स, arms forward, cross your arms over, palms facing each other, interlace your fingers, then pull it in. ठीक है, in. रितु मैम आपसे तो बिल्कुल ही नहीं मैम मेरा ब्रेन काम करना बंद हो गया कोई नहीं मैम, कोई नहीं, ठीक है। अब इस पोजीशन को हम मेंटेन रखेंगे और साथ में हमको डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है, एटलीस्ट 5 ब्रीथ तक की पोजीशन होल्ड करके रखनी है। ओके, अब नॉर्मल, ठीक है। अब हम दूसरी साइड भी करेंगे, अब लेग को इधर क्रॉस करेंगे, अगेन आर्म्स फॉरवर्ड, क्रॉस इट ओवर अदर साइड, face the palms, interlace fingers and pull it in like this. Okay, again we'll do deep breathing. इसमें जब आप ब्रीथ करेंगे ना, तो मेक श्योर आपकी जो टंग हो दैट शुड बी ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, ठीक है, जब आप ब्रीथ इन करेंगे, और जो टीथ हो वो एक के ऊपर एक हो और टंग ऊपर हो। जब आप ब्रीथ आउट करेंगे then your tongue can be relaxed. Okay, this was part 1, then part 2 is this. Again we'll breathe for 5 times, legs apart, join your fingers like this, imagine that this is your right brain, this is your left brain, और आप उसको join कर रहे हैं आपस में, and this is the midline. इसको अपने ब्रेन को इमेजिन करिए, अपने पाम को। आप विजुलाइज करिए कि आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन इंटीग्रेट हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। फाइन, आप लोग करते रहिए, मैं एक बार चेक कर लूं, ठीक है। आसमा जी अपने आर्म्स को थोड़ा आप और वाइड कर सकते हैं, हाँ ठीक है। निकिता जी भी आर्म्स को और रिलैक्स और ओपन कर सकते हैं, ठीक है, गुड, डन so this was the last movement. Actually 26 movements होती हैं ब्रेन जिम में, बट हमने ये सिर्फ 10 करी हैं which are easy for kids to understand. इसमें और भी होते हैं वेरिएशंस और हायर लेवल भी होता है, बट पहले बच्चे ये कर ले तो then we can